Thank you, Jesus. Father God, there is none like you. King of kings, there is none like you. Master, we just give you glory and we say thank you, Lord, for this awesome day that you have given unto us. Master, we glorify your name, we exalt you, and we say hallelujah. Father God, we are committing each and everyone who is watching and or listening this message. Father God, I pray in the name of Jesus, Father God, touch each one of them. Fill them with your favor in the name of Jesus. Master, I'm committing each one of them and committing this message unto you. Holy Spirit, have your way. Father God, have your way. In Jesus' name. Father God, I pray. Amen. God is a good God. How many times what we do, कई बार क्या होता है, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, what we start telling, God, what has happened? My dears, I just want to tell you, we as human are prone to commit mistakes, and we do the things which are not according to Father God in heaven. प्रिय लोगों, हम आपसे सिर्फ एक बात बतलाना चाहते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते हम गलती कर जाते हैं. अगर हम ये कहें कि हम गलती नहीं करते हैं तो वो एक बात झूठ है. क्योंकि if we read in 1 John chapter 1 verse 10, let's read what it says. 1 John chapter 1 verse 10, it says, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. If we say, how many times what we start telling, no, I have not sinned, it's a lie of the devil. How many times myself and you people, we say, no, I'm perfectly all right. I don't tell lie. I have not sinned. कई बार क्या होता है, अगर हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो ये झूठा है. अगर हिंदी की बाइबल, उसमें हिंदी में हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 10वां वचन, उसमें ऐसा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है. यानी कि अगर हम ये कहने लगे कि हमने तो पाप नहीं किया, हमने क्या किया, हमने उस परमेश्वर को झूठा ठहराया और परमेश्वर के वचन हमारे अंदर नहीं है. कितनी बार आप और हम कई बार बोलते हैं कि नहीं, मैं तो सही कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है. ये शैतान का झूठ है जो हमारे दिमाग में आके हमको अटैक करता है और कहता है, क्यों, तुमने कहाँ गलती करी है. तो प्रियजनों, मैं सिर्फ एक बात बतलाता हूँ. इफ brothers and sisters, I just want to let you know one thing, and it's so important to know it. If we say अगर हम ये बात बोलते हैं कि we have not sinned, कि हमने पाप नहीं किया है, it's a lie of the devil. तो ये शैतान का झूठ है. And the word of God is not in us. और परमेश्वर का वचन हम में नहीं है. If we read, अगर हम पढ़ते हैं Romans रोमियो की पुस्तक chapter 3 3 का and verse 23, 3 का 23 अगर हम पढ़ते हैं, it says, उसमें ऐसा लिखा है, for all have sinned and fall short of the glory of कि सबने God. पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए. For all have sinned. सभी ने पाप किया है. How many times? कितनी बार? Now sin, what does this mean? पाप का मतलब क्या है? How many times? What we do? कितनी बार हम क्या करते हैं? And in today's world, और आज के जमाने में what exactly is happening? क्या हो रहा है? We are carrying a mobile phone हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल फोन रहता है and it rings.
और ये जब बजता है and we see a name over it. और जब कोई कॉल आती है तो उसमें उसका नाम दिखाई देता है, And if I don't want to talk to him, और अगर हम उनसे बात नहीं करना चाहते I हैं don't reply. तो हम जवाब भी नहीं देते हैं। Why? क्यों? Why? क्यों? What we are afraid of? हम डर किससे रहे हैं? That is the latest trend. What exactly is happening? ये बिल्कुल नया प्रचलित बात है जो आजकल हो रही है। And sometimes और कुछ बार ऐसा होता it's है, ringing. बज रहा होता है फोन, And what we do? We give it to our children or wife or somebody, and then just tell him that boss is not here. और कई बार हम जब फोन बजता है तो कहते हैं अपने बच्चों से, पत्नी से कि बोल दो कि है नहीं। It's a sin. ये भी तो पाप है। How many times you have done it? कितनी बार हमने ऐसा किया? How many times? कितनी बार किया है? You know? जानते हैं आप लोग? Then we say, what happened? फिर हम लोग कहते हैं तो क्या हुआ? What happened? तो क्या हुआ? I didn't have the time, so I said, just tell मेरे him like पास this. समय नहीं था तो इसलिए हमने ऐसा कह दिया। As a chosen one of और God, और परमेश्वर के चुने हुए होने के नाते what we are supposed to do? हमें करना क्या चाहिए? Pick the phone and talk. हम फोन उठाएं और उनसे बात करें। Another thing, दूसरी बात है, what we do? हम करते क्या हैं? Backbiting. हम पीछे से लोगों के विषय में प्रपंच करते हैं। Again, it's a sin. ये भी पाप है। We start comparing. हम दोनों की तुलना करने लगते हैं। It's a sin. ये भी पाप है। God has created you, as we read in Genesis chapter परमेश्वर 1. ने आपको बनाया है, जैसा कि उत्पत्ति 1 के में लिखा हुआ है। Chapter 1, verse 26. 1 का 26 कहता है, Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. तब परमेश्वर ने कहा कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं। Then verse 27. फिर 27 में 27 में लिखा है So God created man in his own image. कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। In the image of God, he created him. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उनको बनाया। God has created us in his own image and in his likeness. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। He never want us to speak lie. वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम झूठ बोलें। But what happened? लेकिन होता क्या है? He created Adam and Eve. उन्होंने आदम और हवा को बनाया। And what he did with Adam and Eve? और उन्होंने आदम और हवा से क्या कहा? If we see in Genesis chapter 3, उत्पत्ति 3 को अगर हम पढ़ते हैं, and the Adam and Eve, they were placed at the Garden of Eden. आदम और हवा को उन्होंने परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा। And they were supposed to look around. और उनका कार्य था कि वो उस जगह की रखवाली करें, Water the plants. पानी डाले पेड़ों में Maintain. और उसको मेंटेन रखें And do not allow anyone to enter. और किसी को भी वहां प्रवेश ना करने दें। But what they did, लेकिन उन्होंने क्या किया? that we read in Genesis chapter 3 verse 1. उत्पत्ति 3 के 1 में हम पढ़ते हैं, Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? उत्पत्ति 3 का 1 पढ़ते हैं। It says like this, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? God told Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा not to eat the fruit of the tree
which is in the midst of the garden. परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, जो उपवन के बीच में पेड़ लगाया गया है उसके फल को ना खाना। And the serpent लेकिन सांप ने क्या किया? said, लेकिन सांप ने कहा, has God indeed said? क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? Spirit of doubt. संदेह की आत्मा दे दी उसने। Spirit of doubt. उसने संदेह की आत्मा दे दी। Spirit of doubt. उसने संदेह की आत्मा And दे he's दी। telling lady, और उसने उस हवा से कहा, has God indeed said? क्या वास्तव में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? You shall not eat of every tree of the garden. Spirit of doubt. संदेह की आत्मा। The same way, exactly the same thing is happening. और यही होता है, The doubt comes जो संदेह है वो दिमाग में आ जाता है, because क्योंकि in Genesis chapter 3 verse 3 we read, it says, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 3:3 में क्या कहता है? और जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. God said, परमेश्वर ने कहा, God told Eve, Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, fruit of the tree which is in the midst of the garden, you shall not eat it, कि अदन की वाटिका में जो पेड़, nor shall you touch it. उस पेड़ जो बीच में है वाटिका के, उसको ना तो खाना और ना ही उसको छूना, lest you die. और ऐसा करने से तुम मर जाओगे। God had a plan for us. परमेश्वर की हमारे विषय में एक योजना थी। That's why इसी कारण से you shall not eat it, nor touch it, lest you die. इसीलिए उन्होंने कहा, ना तो तुम उसको छूना और ना ही उसके फल को खाना, वरना तुम मर जाओगे। And verse 4 said, और चौथे में लिखा हुआ है, then the serpent said to the woman, you will not surely die. लेकिन सरपेंट ने, सांप ने क्या उस हवा से कहा कि तुम मरोगी नहीं, You shall not surely die. तुम अवश्य मरोगी नहीं। The same thing is happening now. वही बात अब आज के जमाने में हो रही है। Many times, कई बार what we are doing, हम करते क्या हैं? we are doing the things हम वो चीजें करते हैं which we think is okay. जो हम सोचते हैं ठीक है। What God meant here, परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश lest की you है die, कि तुम मरोगे नहीं, lest you die. और न तो तुम ऐसा करोगे तो मर जाओगे। It doesn't mean इसका मतलब ये नहीं है that you will physically you will dead. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी शारीरिक रूप से मृत्यु हो जाएगी। But God had a plan. He was concerned about our spiritual death. लेकिन परमेश्वर का हमारे विषय में एक प्लान था, एक योजना थी, और वो हमारे आत्मिक बात से कंसर्न थी। That is spiritual death. वो हमारी है आत्मिक मौत। That means इसका मतलब है disobeying the God. परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। We are disobeying the God. अगर हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, When we disobey God, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, then what we do? तब हम क्या करते हैं? We start telling lies. हम झूठ बोलने लगते हैं। We start telling lies. हम झूठ बोलने लगते हैं, And और just to hide those lies, और झूठ को बचाने के लिए we give different type of we try to prove ourselves correct in every way, every step. हम अपने आप को दूसरी बातें करके बताना चाहते हैं कि हम ही सही We हैं। are defending ourselves. हम अपने आप का बचाव करने लगते हैं। God never meant it. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं हमारे विषय में रखा है। The serpent, जो सांप है, what he told, उसने क्या बोला? you will not die. तुम अवश्य नहीं मरोगे। You will not die. तुम नहीं मरोगे। You will not die. तुम नहीं मरोगे। But my dear, लेकिन प्रियजनों, remember,
एक बात याद रखो, If God said, अगर परमेश्वर ने कहा है do not do this, तुम ये मत करो, don't do it. मत करिए, Refrain from doing आप it. उससे दूर रहिए, बचाइए अपने को, Because God, क्योंकि परमेश्वर for you and for me, क्योंकि परमेश्वर का आप और मेरे विषय में He gave us His only begotten Son, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया है, that those who believe in Him जितनों ने उस पर विश्वास किया not die, वो मरेंगे नहीं but will have eternal life. बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। But what devil is trying to do with us? लेकिन शैतान हमारे साथ क्या करना चाहता है? कि in spite of knowing everything, हम हर चीज जानने के बाद में भी what we start doing it. हम क्या करने लगते हैं? We go to a church, हम चर्च जाते हैं, and instead of listening the word, वहाँ हम परमेश्वर की बातें सुनने के बजाय, instead of listening the word of God, परमेश्वर के वचन सुनने के बजाय what we are doing? हम क्या करने लगते हैं? Giving attention to the word of God. वो बातें सुनने लगते हैं, नहीं, instead of listening to the word of God, परमेश्वर के वचन सुनने के बजाय what we do? हम क्या करते हैं? Our eyes हमारी आंखें are going here and there, हमारी आंखें इधर उधर भटकने लगती हैं and we are looking into the people, और the हम congregation. लोगों को देखने लगते हैं। Sometimes what we do, और कई बार हम क्या करते हैं? even to our neighbor, हमारे बगल में जो बैठा होता है We उनके say- साथ सुनो we सुनो start सुनो talking. Listen, सुनो सुनो, see that man, see that man. वो देखो कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। What we are doing? हम क्या करने लगे? Are we following God? क्या हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं? Or we are under the command of the Satan, और हम शैतान के आदेश के अनुसार काम कर रहे who हैं। said you will not die, किसने कहा कि तुम मरोगे नहीं? you will die the spiritual death. तुम्हारी आत्मिक मौत होगी, Spiritual death. आत्मिक मौत होगी। And this death और ये मौत is worst बहुत ही बुरी है। from the first death. जो हमारी नेचुरल शरीर में मृत्यु होती है उससे ये बहुत बुरी है। We should learn. हम इस बात को सीखें, We should learn हम इस बात को सीखें how to overcome it. कि हम इससे विजय कैसे पाएं। Because क्योंकि if we read अगर हम पढ़ते हैं Proverb नीति वचन chapter 16 16, and verse 25, अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 16 का 25, it says, इसमें लिखा हुआ है there is a way seems right to a man, कि यहाँ एक ऐसा मार्ग है जो सही दिखता है, but लेकिन its end is the way of death. लेकिन इसका जो अंत है वो मृत्यु की ओर ले जाता How है। many times कितनी बार we try to do things हम ऐसी चीजें सोचने without करने thinking? लगते हैं बिना Because- सोचे समझे। Because क्योंकि what we are looking, क्योंकि हम क्या देख रहे our हैं, focus is on the worldly things, क्योंकि जो हमारा फोकस है वो दुनिया की चीजों पर है and the end is death. और दुनिया की चीजों का फोकस हमें मौत की ओर ले जाता है। And to gain those things, और उन चीजों को पाने के लिए, the worldly pleasure, इस संसार की जो अभिलाषा है उनको पाने के lust लिए, of the eyes, अपने आंखों की अभिलाषा उनको पाने lust के of the लिए, flesh, इस शरीर की अभिलाषा के लिए, and that what we are doing then, and the pride of life और जो जीवन का घमंड है is not of the Father, ये पिता की ओर से नहीं है, but is of the world. ये संसार की ओर से है। It is in 1 John chapter 2 verse 16. पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा हुआ है, That is a thing. Because क्योंकि our focus is हमारा on the जो- things of the world. हमारा जो ध्यान है वो दुनिया में लगा हुआ है, It's not from the Father God. ये पिता की ओर से नहीं है, It's from the world. ये दुनिया की ओर से है। That's why इसीलिए what it said in Proverbs 16:25. नीति वचन 16 के 25 में लिखा हुआ है,
there is a way that seems right to a कि वहाँ man, एक मार्ग है जो लोग मनुष्य को तो सही जान पड़ता है, but its end is way of death. लेकिन इसका जो अंत है वो मृत्यु की ओर है। It is taking us ये हमें ले जाता है, to the end, is a way for our spiritual death. To और ये- gain those worldly things, इस दुनिया की चीजों को पाने का मतलब है we commit ourselves to the worldly pleasure. हम दुनिया के सुख अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं। That is the thing और यही बात है, is happening now. ये चीजें ऐसा हो रहा है In today's life, आज के जीवन में, ऐसा हो रहा है। we look unto our lives अगर हम अपने जीवन की में झांकें and see, और हम अपने आप को देखें, think over सोचिए इस बारे में, what we are doing, हम कर क्या रहे हैं, where we are going. हम जा कहाँ रहे हैं, Are we coming closer to God, क्या परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं or we are coming closer to the world? या हम दुनिया के करीब जा रहे हैं। And this thing और ये चीजें जो हैं, is taking us away from God. हमें ये चीजें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। My dear friends, मेरे प्रिय मित्र, check yourself. अपने अंदर झांको, Check yourself. अपने अंदर झांको, Check yourself. अपने अंदर झांको। Where we are going. तुम कहाँ जा रहे हो, Where we are going. कहाँ जा रहे हैं Where हम, we are going. कहाँ जा रहे हैं हम, Because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास And योग्य He है said, और उसका वचन कहता है, and what He said, He will do it. उसका वचन कहता है, उसने जो कहा है वो करेगा। That's why He's telling us today. इसलिए वो हमसे आज कह रहा है। Romans chapter 12, रोमियो की पुस्तक के 12 में, verse 2. रोमियो की पुस्तक 12 के 2 में कह रहा है, And do not be conformed to this world, इस दुनिया के सदृश मत बनो, but be transformed by the renewing of your mind, लेकिन अपने मन को, दिमाग को बदलो परमेश्वर के वचनों that के you may द्वारा, prove ताकि तुम इस बात को बता सको what is that good जो कि अच्छा है, and acceptable परमेश्वर की निगाह and में, perfect will of God. परमेश्वर की निगाह में अच्छा है और परमेश्वर को स्वीकार है, क्योंकि ये परमेश्वर की अति उत्तम मर्जी के अनुसार Do है। not be conformed to this world. इस दुनिया के सदृश मत बनो, Do not be conformed to this world, इस दुनिया के सदृश मत बनो, because क्योंकि in God's way, परमेश्वर की निगाह में, because He said, उनका वचन कहता है, come to me, मेरे पास आओ। to reach unto the Father in heaven. परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके पास आओ। The way is narrow. उसके जाने का मार्ग जो है वो सकरा है, The way is narrow. उसके पास पहुंचने का जो मार्ग है वो सकरा है, The way is narrow. मार्ग सकरा है। Remember, but remember one thing. लेकिन याद रखो एक बात, In the end, लेकिन उसका अंत, you have eternal life. तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। But if you are conforming to this लेकिन world, अगर तुम इस दुनिया के सदृश बन जाओगे, the way is wide. उसका मार्ग चौड़ा है, The way is wide. मार्ग उसका चौड़ा है, The way is wide. मार्ग उसका चौड़ा You are है, getting the things. और तुम्हारे पास वो चीजें आ रही हैं, All pleasure. सारी जो भी आपके आनंद की चीजें वो आ रही हैं। What you are doing? अब तुम उससे क्या कर पा रहे At the हो? cost of your spiritual life, तुम अपनी आत्मा के को गवा करके you are gaining तुम कुछ पा रहे हो, the way to the spiritual death. लेकिन तुम पा रहे हो अनंत मृत्यु को। Beware. इसलिए सचेत हो जाओ, Devil is a liar. शैतान झूठा है, Devil is a liar. शैतान झूठा है। Can we all say that devil is a liar? चलो हम सब कहते हैं कि शैतान तू झूठा है, You cannot touch me. तू मुझे नहीं छू सकता है, Because क्योंकि 1 John पहला यूहन्ना 4:4. 4:4 में लिखा हुआ है, 1 John chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा हुआ है, You are of God, तुम परमेश्वर के हो। little children, प्रिय छोटे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो and have overcome them, और तुमने विजय पा ली है उन पर, because he who is in you क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है, is greater than he who is in the world. जो तुम्हारे अंदर है वो जो दुनिया में है उससे बड़ा है।
Remember, इसलिए याद रखो, because it says, क्योंकि ये वचन ऐसा कहता है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। What is in the world? दुनिया में क्या है? Worldly pleasure, दुनिया का सुख, lust, अभिलाषाएं, all those things यही सारी चीजें which is taking us away जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती from हैं। the love of God. That is why इसीलिए it says, परमेश्वर का वचन कहता the है one who is in you कि जो तुम में है is greater than the one वो उससे बड़ा है who is in the world. जो दुनिया में है। So who is in us? तो हम में कौन है? हमारे Who is अंदर in कौन us? है? हमारे अंदर कौन Who is है? in us? हमारे अंदर कौन है? John chapter 1 verse 12. यीशु का वचन बताता है, यूहन्ना 1 के Chapter 1 verse 12. यूहन्ना 1 के 12 में ऐसा लिखा है, But as many as received him, जितनों ने उसको to स्वीकार them he किया gave the right उसने उन्हें to become children of God. परमेश्वर के संतान होने का हक दे दिया, Those who believe in his names. जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। His name is in us. उसका नाम हमारे अंदर है, We are his child. हम उसके बच्चे हैं। So इसलिए we can tell, हम इसलिए बोल सकते हैं, devil, शैतान you got no right over me. तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं Jesus है, is in me. क्योंकि यीशु हमारे अंदर है Hence you are defeated. और तुम हार चुके हो। And my Jesus मेरा यीशु is bigger than you. तुमसे बड़ा है And I crush you under my feet. और मैं तुमको अपने पैरों के नीचे कुचल देता हूँ। There is one more word which I just want to share. एक और वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। It is from Romans chapter 8. रोमियो 8 में लिखा है, पढ़ते हैं रोमियो 8 Verse 13. के 13 को। Just see how important it is. सोचो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। It says, ऐसा बोलता for है, if you live according to the flesh, क्योंकि अगर you will die. क्योंकि वचन रोमियो का 8 का 13 में बोलता है कि तुम अगर शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार रहोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। और देखते हैं बाइबल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, रोमियो 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, but if by the Spirit you put to death that, and it says then, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. You will live. That means, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Jesus is in us. यीशु हमारे अंदर है। So इसलिए what we do? हम क्या करते हैं? By the Spirit परमेश्वर की आत्मा के द्वारा we are putting the deeds of the body to death. हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो शरीर के कार्य हैं उनको मार देते हैं, Will live. तब हम जीते हैं। Let's read one more verse. It's 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 6 6 के verse 19 19 में देखिए क्या लिखा हुआ है, and verse 20. और 19-20। Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. It says in Hindi,
पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है Who is in you? जो तुम्हारे भीतर रहता है? What we read in 1 John 4:4. जो हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 4:4 में, The one who is in you. कि जो तुम्हारे भीतर है। So Holy Spirit is in us, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, whom you have from God. जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। We have received Holy Spirit from God. हमने पवित्र आत्मा को परमेश्वर से पाया है, Hence we are not our own. इसलिए हम अपने आप में नहीं हैं, God हम is अकेले in us. नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। Holy Spirit is in us. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। We can boldly say, इसलिए हम पूरे साहस के साथ कह सकते the हैं, one who is in me जो मेरे भीतर है is greater than the one who is in the world. उससे महान शक्तिशाली है जो दुनिया में है। We just tell हम इस बात को कहते we are हैं, more than conquerors in हम- Christ Jesus who strengthens us. हम मसीह में जो हमें मजबूत करता है, हम जयवंत बना दिए गए हैं। And 1 Corinthians 6:20 it says, for you were bought at a price. पहला कोरिन्थियों 1 के नहीं 6 का 20. पहला कोरिन्थियों 6:20 कहता है You were bought at a price. कि तुम्हें मोल लेके खरीदा गया है, दाम देकर मोल मोल लिए लेके खरीदा गया है। Therefore glorify God in your इसलिए body परमेश्वर की महिमा इस शरीर में करो and in your spirit, और अपनी आत्मा में उसकी महिमा which करो, are God's. क्योंकि ये परमेश्वर के हैं, You were bought at a price. क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने खरीद लिया है। Jesus died for us यीशु मसीह हमारे लिए मरा, on the cross of Calvary. क्रूस पर, कालवरी के क्रूस पे हमारे लिए मरा, By his death on the cross, और उसके क्रूस पे मर जाने से he has bought us उन्होंने हमें मोल खरीद लिया है। by his own blood. उन्होंने अपना खुद का लहू बहाया। Father God पिता परमेश्वर ने gave his only begotten son अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, for you and for me. तुम्हारे और मेरे लिए दिया। He died on the cross of वो Calvary क्रूस, कालवरी के क्रूस पे मरा, and he said, और उसने कहा, I have redeemed you मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। by his blood. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, Is the blood परमेश्वर के लहू के द्वारा, which is now flowing from the cross. जो क्रूस से गिर रहा है, क्रूस से बह रहा है, It is setting you and me free. वो हमें और आपको आजाद कर रहा है। This blood is alive. परमेश्वर के लहू में Start जीवन feeling. है, उस लहू में जीवन है। Start feeling अपने आप महसूस करो that blood is dropping. Tap, tap, कि परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू गिर रहा है और टप टप करके गिर रहा It है, is delivering you. और वो तुम्हें छुड़ा रहा है, It is healing you. वो तुम्हारी चंगाई कर रहा It is है, giving you strength. वो तुम्हें ताकत दे रहा है, The deliverance. तुम्हें छुड़ा रहा है, Any evil spirit. तुम्हें दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुड़ा Any रहा evil है, spirit. सारी दुष्ट आत्माओं से छुड़ा Any रहा evil है। spirit और जो दुष्ट आत्मा है which is controlling you जो तुम पर कंट्रोल कर रही है right now. अभी और इसी वक्त, That blood परमेश्वर के यीशु के From the लहू के cross of द्वारा, Calvary. जो लहू कालवरी के क्रूस से बह रहा है, has come over you, वो तुम्हारे ऊपर आ गया है, giving you deliverance. तुम्हें छुटकारा देने के लिए तुम्हारे giving ऊपर you आ गया है, deliverance. और वो तुम्हें छुटकारा He's दे giving रहा you है, deliverance. वो तुम्हें छुटकारा दे रहा Setting you है, free. तुम्हें आजाद कर रहा He's है, setting you free. वो तुम्हें आजाद कर He's रहा है, setting you वो free. तुम्हें आजाद कर रहा You are है, free indeed. और तुम वास्तव में And to आजाद हो whom गए son हो। sets free is free indeed. और जिसे परमेश्वर का पुत्र आजाद कर देता है, वो अवश्य ही आजाद हो गया Hallelujah. है। हालेलुया। Can we say thank you, क्या Jesus? हम धन्यवाद कर सकते हैं यीशु That मसीह, you have धन्यवाद freed me. कि आपने मुझे आजाद कर You दिया, have
delivered me. आपने मुझे आजाद कर दिया, You have healed me. आपने मुझे चंगा कर दिया, You have strengthened me. आपने मुझे ताकत दे दी है प्रभु। Father God, I give you thanks पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं for setting me free. मुझे आजाद कर देने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Father God, I give you glory and I said thank you, Lord, हम आपको धन्यवाद देते हैं for परमेश्वर, this wonderful message that इस- you have given इस- unto us. इस मैसेज के लिए, इस संदेश के लिए जो आपने हमें दिया, And you have talked to each one of और us आपने हम सबसे बात करी है through your word, अपने शब्दों के द्वारा, and you have strengthened us. और आपने हमें मजबूत किया है। And you said, fear not, और आपका वचन कहता है कि डरो नहीं, I have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ा दिया I है, have called you by your name. मैंने तुम्हें नाम लेके के बुलाया You है। are not your own, तुम अपने अब नहीं रहे, but mine. अब तुम मेरे हो। Father God, I said thank you, Lord, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते for हैं this wonderful promise इस बहुत ही खूबसूरत वायदे के लिए which you have given unto us. जो आपने हमें दिया है। Father God, we bless your holy name. पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम को आशीषित Father God, करते there are हैं। so many people, प्रभु यहाँ बहुत लोग हैं those who are passing through, जो बहुत ही those who are suffering समस्या से गुजर रहे हैं, from different problems, और उनकी अलग अलग समस्याएं the हैं financial परमेश्वर, problem, the spiritual problem. आत्मिक समस्या, धन से संबंधित समस्या Father God, I परमेश्वर। said, just free them, प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है पिता, आप उन्हें आजाद कर दीजिए, reply them. उनके प्रार्थना का उत्तर दे I दीजिए। said, thank you, Lord, हम आपको धन्यवाद देते for हैं touching उन सबको स्पर्श करने के लिए, and answering और उनके प्रार्थना का उत्तर देने के and लिए, setting free each of them और उनमें से हर एक को आजाद कर देने के in the लिए name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से I pray. मैं प्रार्थना करता And everybody हूँ, say amen. और सभी लोग amen, बोले and amen. Let's give a clap offering to him. आमेन।